Hello dear students, welcome to my channel Study Time. Today I will teach you very nice and interesting poem, that is why English is so hard. Name of the poem itself starts with the question tag why, and we will get answer of this question tag till the end of the poem. Before begin with the poem, I would like to tell you I have uploaded videos of all the previous lessons and with questions and answers. If you find it beneficial for you, then do watch videos, like, comment, subscribe my channel and press bell icon to get update about new videos. Now come along. I am going to explain each and every stanza and its meaning in detail. Now let us start with first stanza. We will begin with a box and the plural is boxes, but the plural of ox should be oxen, not oxes. We will begin means start. Here the meaning of begin means what? Start with a box. That means हम box के साथ शुरू करेंगे. And the plural is boxes और बहुवचन क्या है उसका? Boxes है. Means if there is one box, we called it as a box. But if there are more than one box, we called it as a boxes. That means singular of a box is box and plural of box is boxes. Now, let us see unexpected turn in English language. After it, you will come to know about why English is so hard. Okay, now see next lines. But the plural of ox should be oxen, not oxes. लेकिन हम यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे कि बैल का बहुवचन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सन, ना कि ऑक्सेस. दैट इज वी कैन से दैट if there is one ox, we called it as a ox. But if there are more than one ox, we say it as oxen. Because of such tricky things, English is so hard. कुछ ऐसी पेचीदा चीज़ों की वजह से English language hard है. Now let us move towards second stanza. You may find a lone mouse or a whole lot of mice. But the plural of house is houses, not highs. Possibly, you see a single one or lone mouse. Okay, हम एक माउस को क्या बोलते हैं? दैट मीन्स यहाँ पे लोन का मतलब क्या है? एक माउस. ओके, तो हम उसको माउस बोलते हैं. और होल लॉट ऑफ माइस दैट मीन्स इसका मीनिंग है बहुत सारे चूहे. हियर सिंगुलर ऑफ माउस इज mouse, but plural is mice. But the plural of house is houses, not highs. Okay, again here we come across a tricky situation because plural of mouse is mice, but plural of house will never be highs. फिर से यहाँ पे हम देखें तो इंग्लिश हमें पेचीदा लगेगी क्योंकि माउस का प्लूरल माइस होता है, लेकिन हाउस का प्लूरल कभी भी हाइस नहीं होता है ना बच्चों? तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश क्यों मुश्किल है. वाई इंग्लिश इज सो हार्ड. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एंड थर्ड स्टैंजा. If the plural of man is always called men, why shouldn't the plural of pan be called pen? इफ यदि मनुष्य का बहुवचन हमेशा पुरुषों को कहा जाता है तो क्यों नहीं पेन के बहुवचन को कलम कहा जाना चाहिए? बट हियर एक्चुअल कंडीशन इज डिफरेंट बिकॉज प्लूरल ऑफ मैन इज ऑलवेज मेन बट द प्लूरल ऑफ पैन विल नेवर बी पेन. Again students, we come across tricky situation. That's why English is so hard because here we cannot determine why the plural of pan will never be pen. We can't find certain and particular answer of such tricky questions. That's why we can say that English is so hard. Now see fourth stanza. And I speak of a foot, and you show me your feet.
but I give you a boot. Would a pear be called beet? और मैं एक पैर की बात करता हूँ और आप मुझे अपने पैर दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बूट देता हूँ, तो क्या एक जोड़ी को बीट कहा जाएगा? Here, when I'm talking about foot, that means one leg, then you show me your 2 feet, that is both of your legs. But when I give you a boot, boot means पैरों में पहनने वाला बूट या जूता. But can you call pair of boot as a beat? Here, if we compare foot and boot, if we're talking about foot, that means it is a single leg. But if we're talking about boot, that means it has a pair of two boots. That means boot is nothing but a pair itself. Okay, but foot is not mean the pair of two legs. Okay, now अगर foot को that means single legs को हम foot बोल सकते हैं. ओके तो हम उसके पैर को दैट मीन्स पैर को एक साथ बोलेंगे तो हम फीट बोलते हैं. लेकिन अगर हम बूट के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, तो बूट मीन्स ही क्या होता है, इटसेल्फ इज अ पैर. ओके तो अगर हम उसके पैर के बारे में बात करते हैं, हम उसे बीट नहीं बोल सकते. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट स्टैंजा. दैट 1 मे बी दैट एंड 3 मे बी दोज. 8 द प्लूरल ऑफ हैट वुड नेवर बी होज. ओके अगर हम किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, 1 में भी क्या होता है, दैट होता है. अगर एक चीज है तो हम क्या बोलेंगे, दैट. सपोज मैं टेबल के बारे में बोलना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज द टेबल. ओके वो टेबल है. नाउ लेकिन अगर 3 चीजें हैं, मोर देन 3 टेबल्स है, सपोज मैं 3 टेबल्स के बारे में बोलना चाहती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर द टेबल्स. ओके दैट मीन्स एक चीज के बारे में बोलने के लिए हम दैट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड उससे ज्यादा चीजें होती है तो हम उसको बोलने के लिए हम क्या करते हैं, दोज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. ओके 8 उसके बावजूद भी अगर हम हैड के प्लूरल को देखें तो हम उसको होज नहीं बोल सकते. ओके दैट को दोज बोल सकते हैं, लेकिन हैड के प्लूरल को हम होज नहीं बोल सकते हैं. ओके हैड का प्लूरल होज कभी नहीं हो सकता. द नेक्स्ट स्टैंजा इज द मस्कुलाइन प्रोनाउंस आर ही, हीज एंड हिम, बट इमेजिन दैट फेमिनाइन शी, शीज एंड शिम. ओके मस्कुलाइन मीन्स व्हाट, जो मेल के लिए यूज किया जाता है. ओके जो पुरुषों को बुलाने के लिए यूज किया जाता है. यहाँ पे प्रोनाउंस का मतलब होता है कि हम नाउन की जगह पे, अगर नाउन बहुत बार दोहराया जा रहा है किसी भी कंटेंट में या फिर किसी भी पैराग्राफ में या फिर स्टोरी में, तो हम उसकी जगह पे क्या करते हैं, यूज प्रोनाउंस यूज करते हैं. ओके तो प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ही, हीज एंड हिम. ये किसके लिए होते हैं, मेल के लिए होते हैं, दैट मीन्स मस्कुलिन के लिए होते हैं, दैट मीन्स पुरुषों के लिए यूज किए जाते हैं. ओके तो उनके लिए हम ही, हीज एंड हिम प्रोनाउंस यूज करते हैं. बट इमेजिन, लेकिन सोचिए, द फेमिनाइन, फेमिनाइन मीन्स व्हाट, की स्त्रीलिंगी या फिर स्त्री जाति. दैट मीन्स अगर सोचो, अगर फेमिनाइन के लिए हम शी, शीज एंड शिम यूज करेंगे तो ओके यहाँ फेमिनाइन के लिए कौन सा प्रोनाउंस होता है, शी, हर. ओके लेकिन अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं मस्कुलिन के साथ और हम शी, शीज एंड शिम यूज करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. ऐसा इमेजिन करके देखो, ऐसा हो पाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा. So our English, I think you will all agree. तो our English that means ये हमारी इंग्लिश जो भाषा है, मुझे लगता है कि आप लोग सारे सहमत हो गए होंगे. इज द ट्रिकेस्ट लैंग्वेज. क्या है ये, मुश्किल लैंग्वेज है. यू एवर डिड सी, जब तक अभी तक आपने जो भी लैंग्वेजेस, जो भी भाषाएं देखी है उसमें क्या है, ये ट्रिकेस्ट, दैट मीन्स मुश्किल लैंग्वेज है. सो स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू दिस पोएम इन अ easy way as much as I can. So I hope all of you understand this poem very well. So keep watching, keep learning. Thanks for watching my video.